میرے ساتھ نکال سکتے ہیں آپ یہ سایہ کی کتاب اور اس کا 55 باب ہے 6 آیت سے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو۔ اس لیے کہ خداوند کے بندہ نے بولا، خدا کے بندہ نے بولا کہ جب تو نے فرمایا کہ میرے دیدار کے طالب ہو تو میرے دل نے تجھ سے کہا میں تو تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ اور خداوند کے بندہ نے بولا کہ میں خدا کا طالب ہوا اور اس نے مجھے میری ساری دہشت سے رہائی بخشی۔ تو طالب ہونے کا فائدہ اور برکت ایمانداروں کے لیے کہ انہیں ہر طرح کی دہشت سے رہائی ملتی ہے۔ خدا کلام میں لکھا گیا کہ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، اور جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ جب تک خداوند نزدیک ہے اسے پکارو۔ اور خداوند کہاں پہ نزدیک ہے؟ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں۔ اور بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں پر بھی لوگوں کو پتہ لگا کہ یسوع یہاں سے گزر رہا ہے، لوگوں نے پکارا تھا۔ برتمائی اندھا جس کو نظر نہیں آتا، صرف اتنا پتہ لگا کہ یسوع یہاں سے جا رہا ہے، پکار اٹھا، اے یسوع مجھ پہ رحم کر، اے یسوع مجھ پہ رحم کر۔ ایک ہی بات تھی، لوگوں نے چپ کرانے کی کوشش کی، وہ اور بھی چلایا۔ یسوع مسیح کہتے ہیں اسے میرے پاس لاؤ اور پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بینا ہو جائے۔ جب پیدا ہی ہوا ہوگا کتنا ماں باپ خوش ہوگا کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ کیا معلوم انہیں کہ اس بچے کو نظر نہیں آتا، اس نے اپنے ہوش سنبھالی ہوگی، روتا ہوگا، اس سے زیادہ ماں باپ روتے ہوں گے کہ ہمارے بچے کو نظر نہیں آتا۔ اور ایک خداوند کی خادمہ نے بولا، اس سے پوچھو جس کو نظر نہیں آتا کہ ہرا رنگ کہو جا ہوندا ہے، لال رنگ کہو جا ہوندا ہے۔ اور جب تک خداوند نزدیک اسے پکارو، اور اسے پکارا، اس کا فائدہ اسے پہنچا، خدا نے اسے بلا لیا، خدا نے بلا لیا، پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں۔ تو مسیح نے بولا میں چاہتا ہوں کہ تو بینا ہو جا۔ ہاللیلویا۔ اور اسی لمحے وہ بندہ شفا پا گیا، جس کا بائبل مقدس میں نام نہیں لکھا ہوا، اس کا اپنا نام کوئی نہیں لکھا ہوا، اس کا نام برتمائی لکھا ہے۔ بر کا مطلب ہے بیٹا، اور تمائی کا بیٹا، تمائی کا بیٹے کے نام سے مشہور تھا۔ ہو سکتا اسے لوگ اندھا کہہ کے پکارتے ہوں، لیکن اس کا پکارنا خداوند نزدیک ہونے کے باعث اس کے لیے شفا کا باعث بن گیا۔ اور اس نے سب سے پہلے اگر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو مسیح کے نورانی اور جلالی چہرے کو دیکھا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو پھر جب تک خداوند نزدیک ہے اسے پکارو۔ 10 کوڑیوں نے بھی یہی کیا تھا۔ یسوع وہاں سے گزرا تھا، وہ سمجھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ کوئی آئے نہ آئے ہمارے پاس یسوع آ جائے گا۔ اور آج ہماری فائدے کا ٹائم ہے۔ انہیں پکارا اور ہم جانتے ہیں کہ 10 کے 10 شفا پا گئے۔ جب تک خداوند نزدیک ہے اسے پکارو۔ اور آگے لکھا شریر اپنے راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا۔ تو پھر رحم ہوا نہیں اس 12 برس کی بیمار عورت کے اوپر، جو طبیبوں کے پاس جاتی سب کچھ اپنا لٹا چکے، لیکن جب یسوع مسیح کے پاس آئی، میں تو اس کا پلو ہی چھولوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ تو خداوند نے بولا کہ مجھے میں سے قوت نکلی۔
हालेलुया। तो खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं। खुदा फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। तो खुदाओं के ख्यालात अपने बंदों के लिए हमेशा बहाली के, बरकतों के, सलामती के हैं। बाइबल कहती है कि तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। हालेलुया। उसके ख्यालात हमारे लिए बरकत के, सलामती के, उम्र की दराजी के, निजात के, बहाली के। हालेलुया। तो खुदाउन फरमाते हैं कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह आसमान से, अब खुदा ने बोला किस तरह वो अपने कलाम को पूरा करेगा और करता है। यिर्मयाह में ये भी लिखा गया कि मैं अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। और यशायाह की किताब में जो बयान है कि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सराब करती है और उसकी शादाबी का और रोईदगी का बाइस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह जिस तरह ये होता है उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। यही वो आयतें हैं जिन आयतों के ऊपर मैंने गीत लिखा था, तेरा कलाम लाएगा असर है खुदा। हालेलुया। जैसे बारिश जमीन के ऊपर आती है और जमीन को सराब करती है, वैसे ही मेरा कलाम पूरा असर करेगा। हालेलुया। लेकिन जो रद्द करते हैं, रद्द करने वाले वो बथेरे थे। सारे लोग यीशु के पीछे जाने वाले नहीं थे, लेकिन जो जाते थे बरकत पाते थे। और खुदा उनके कलाम में से हम वो हवाला जात कुछ पढ़ेंगे। क्यों हमें तालब होना है? इसलिए कि हमें रहाई मिलती है। और खुदा का बंदा कहता है, ज़बूर की किताब उसका 104 ज़बूर उसकी 29वीं आयत, तू अपना चेहरा छुपा लेता है। वो जो खुदा का कलाम कहता है कि जब तक वो मिल सके उसको ढूंढो, लेकिन जब कोई बंदा ना ढूंढे, ना उसका तालब हो, तो खुदा कलाम में लिखा कि तू अपना चेहरा छुपा लेता है और ये परेशान हो जाते हैं। तो खुदा ने क्या बोला, जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं मिल जाऊंगा। बाइबल कहती है कि जब ढूंढते राह यहोवा दा दिल जिंदा होवे उन्ना दा। और जब तू अपना चेहरा छुपा लेता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। और आगे लिखा गया है, तू उनका दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। कब? जब खुदा उन अपना चेहरा छुपा ले। कब छुपा ले? जब उसकी कोई तरफ तालब ना हो, जब उसकी तरफ कोई आने के लिए तैयार ना हो, तो क्या करे खुदा? फिर जिंदगी में परेशानी आती है। तो फिर अच्छा क्या है कि जब खुदावंद कहता है कि मेरे तालब हो, तो फिर बंदा कहे कि खुदावंद मैं तेरा तालब रहूंगा। लेकिन खुदावंद शिकवा भी करते हैं। यिर्मयाह की किताब के अंदर उसके 7वें बाब के अंदर 23वीं आयत के अंदर, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज के शिनवा हो। हालेलुया। सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरी आवाज के शिनवा हो, मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा और तुम मेरे लोग होगे। मेरी आवाज के शिनवा हो
जब मैं तुम्हें फरमाता हूं कि मेरी आवाज के शिनवा हो तो मेरी तरफ रज्जू लाओ, मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूं उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। आज क्यों जिंदगी में मुसीबतें परेशानियां हैं, वो हुक्म देता है कि मेरे पीछे पीछे चलो। मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मेरी भेड़ों को मुझसे कुछ छीन नहीं सकती। आमीन। तो खुदा का कलाम में पढ़ते हैं कि तुम्हारा भला होगा, लेकिन उन्होंने ना सुना, ना सुना, ना कान लगाया, बल्कि अपनी मसलहतों और अपने बुरे दिल की सख्ती पर चले और बरगश्ता हुए और आगे ना बढ़े। आज भी खुदा का शिकवा जारी सारी है। लोग इबादत में नहीं बढ़ रहे, शुक्रगुजारी में नहीं बढ़ रहे, बस फॉर्मेलिटी के तौर पे चर्च आया जा रहा है, फंक्शन के तौर पे सेलिब्रेशन हो रही है। खुदावंद कहता है तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। तो फिर खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो यशायाह किताब में से हम पढ़ते हैं, अभी वक्त है जब तक खुदावंद मिल सकता है उसके तालब हो। कल हमारी बादी में से एक नौजवान बंदा चला गया, छोटी छोटी उसकी बेटियां रो रही थी, अब्बू उठ जा, बोल अब्बा साढ़े नाल। अब्बा कब बोलेगा? अभी उसका जनाजा गया नहीं है, अभी जनाजा गया नहीं है। एक औरत की डेड बॉडी एम्बुलेंस में उधर आ गई साथ में। हम समझे कि शायद एम्बुलेंस आई है इसलिए कि इस जनाजे की डेड बॉडी को ले जाने के लिए, क्या मालूम कि कोई एक और डेड बॉडी आ गई है। और बताते हैं वो अच्छी खासी सेहतमंद थी, वॉशरूम में गिरी है, गिरने के बाद से क्या चोट लगी कि डेड बॉडी उसकी यहाँ पे आ गई। जब तक खुदावंद ने हमें हिम्मत दी है, ताकत दी है, इबादत की इच्छा है। आमीन। वक्त आएगा फिर कुछ नहीं हो सकेगा, फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए खुदा ने बोल दिया था अभी तू जवान है, कल को तू बूढ़ा होगा। आज काम जो तू खुद करता है कल को वो दूसरा करेगा। आज तो हम सारे काम खुद ही करते हैं ना, लेकिन वक्त आता है तो दूसरा उसका कमर बंद बांधता है, उसके कपड़े पहनाता है, कोई से नहलाता है। जब तक खुदा मिल सकता है उसको उसके तालब हो। तो मैं खुदाओं का तालब हुआ, उसने मुझे रहाई बख्शी। जितने भी खुदाओं के तालब हुए, खुदा की जिंदगी में बरकतें पाती। हालेलुया। ताकि सब खुदा उनके जुम्मे खड़े होके शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अभी वक्त है, बाइबल कहती है कि पैदा होने का एक वक्त है, मर जाने का एक वक्त। अभी वक्त है, दरमियानी वक्त, जिसमें हम खुदाओं के तालब होके अपने खुदा का शुक्र कर सकते हैं। खुदावंद कहते हैं मैं उनकी तरफ मतवज्जो हुआ, फरमाया कि मेरी आवाज के शिनवा हो, लेकिन उन्होंने ना सुना, मुझे रद्द कर दिया गया। मेरी आवाज को उन्होंने रद्द कर दिया। आज भी उसकी आवाज पुकार रही है, दावत दे रही है, ऐ बोझ के तके मंदे सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अभी वक्त है, जिन्होंने वक्त से फायदा उठा लिया उनके नाम आज दर्द है। बर्तमाई अपनी अंधी आंखों से शिफा पा गया। 10 कोड़ियों ने अपने कोड़ से रहाई पा गए। जितनों ने भी खुदा को पुकारा, जब तक वो नजदीक है पुकारो अपने खुदावन को पुकारो। आप अपने खुदा के जुम्मे पुकार सकते हैं। कौन कौन सी मुसीबत को, परेशानी, बीमारी ने घेरा है, वो है यहाँ पर। वो है अपना चेहरा चमकाने वाला,
और जब वो अपना चेहरा छुपा लेता है तब जिंदगी में परेशानी आ जाती है। इसलिए खुदा कलाम कहता है, ईमान के बानी का अमल करने वाले यीशु को तकते रहो ताकि तुम्हारी जिंदगी में बरकत बढ़ती चली जाती है, तुम्हें शिफा, तुम्हें जोर मिलता चला जाए। अपने खुदा का शुक्र करेंगे। कुछ लम्हे के लिए आप बुलंद आवाज के साथ दुआ कर सकते हैं। अपना गला फाड़ और दरेग ना कर। एक वक्त आता है मुंह बांध दिया जाता है, एक वक्त आता है कपड़ा डाल दिया जाता है। अभी वक्त है, जब तक खुदा मिल सकता उसे ढूंढो। जब तक खुदा नजदीक है उसके तालब हो, वो यहाँ पे मौजूद है। अपने खुदावंद का शुक्र करेंगे, उसकी भलाई का शुक्र करेंगे, उसके नाम का शुक्र करेंगे और फायदा उठाएं। फायदा देने के लिए ही खुदावंद आता है, फायदा देने के लिए आप मौजूद होता है, फायदा देने के लिए वो यहाँ पे मौजूद था, फायदा देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आज इस महीने का इस दिन को अपने लिए बरकत का दिन ठहराएं। वो यहाँ पे मौजूद है जिसको लोग ढूंढा करते थे और पा लेते थे और मौजा देखते थे, शुक्रगुजारी करते थे, खुदा के नाम को जलाल देते थे। हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा तेरा शुक्रिया, खुदा तेरा शुक्र, तू यहाँ पे मौजूद है। हमें खुदा तेरा तालब रहना है, हमें तेरी शुक्रगुजारी करते रहना है। हम और अपना हाथ बढ़ा, हमें खुदा और अपनी सलामती में रख और अपने खुदा जोर अता फरमा ताकि हम तेरे जोर में बढ़ते चले जाएं। जो तू चाहता खुदा वैसा करते चले जाएं। खुदा हम पाक खुदा, हम कभी तेरी आवाज को खुदा रद्द करने वाले न ठहरे। तेरी आवाज के सदा सुनवा रहे कि मेरा खुदा मुझे बुलाता है, मेरा खुदा मुझे पुकारता है, मेरा खुदा मुझे बरकत देना चाहता है, मेरा खुदा मुझे आराम देना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है, मेरी कमजोरी को जोर में बदलना चाहता है। खुदा हम हमेशा तेरी आवाज के सुनवा रहे। तेरी आवाज में कुदरत है, तेरा कलाम खुदा जिंदगी में बरकत भर देता है। जैसे बारिश जमीन के ऊपर आती है, सराब कर देती है, इसी तरह तेरा कलाम खुदा जिंदगी में खुदा नई खुशियां भर देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। दुआ है खुदा, हम जब तक जीते हैं तेरे लिए जिए और तेरे नाम पे इज्जत और जलाल दे, तेरे सदा तालब रहे। तू हमसे कभी चेहरा अपना ना छुपाना, क्योंकि खुदा हम नहीं परेशान रहना चाहते। हम जानते हैं कि जब तू चेहरा छुपा ले तो हमारी जिंदगी परेशानी आ सकती है। बस खुदा तेरा हाथ हमारे ऊपर हो, अपने खुदा के ज़िम्मे उसे कुछ देर के लिए सजदा कर सकते हैं।